رحیم خان میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے ADP کے تحت 84 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے گئے۔ محکمہ ہائی وے کے تحت 66 کروڑ روپے کی لاگت سے 81 اسکیمیں اور 18 کروڑ روپے کی لاگت سے پبلک ہیلتھ کی 18 اسکیموں کو مکمل کیا جائے گا۔ رحیمیہ خان میں جاری ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل کے لیے ADP کے تحت فنڈز کا اجرا کر دیا گیا۔ مکمل فنڈز کے اجرا ہونے سے یہ اسکیمیں رواں سال مکمل ہو جائیں گی۔ محکمہ ہائی وے کی 81 اسکیموں کے تحت پختہ سڑکیں تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ محکمہ ہائی وے کو 81 اسکیموں کے لیے 66 کروڑ روپے کا اجرا کیا گیا ہے، جن میں منچن آباد روڈ، پکا قریشیاں روڈ اور آبادپور روڈ کی بڑی اسکیمیں شامل ہیں۔ پبلک ہیلتھ کی 19 اسکیموں کے لیے بھی 18 کروڑ روپے فنڈز کا اجرا ہوا ہے۔ میگا سیوریج اسکیم کوٹ سوابا، میگا سیوریج اسکیم ترنڈا محمد پناہ اور واٹر سپلائی اسکیم صادق آباد سمیت 18 سیوریج اور واٹر سپلائی کی اسکیموں کو مکمل کیا جائے گا۔ لیا میں کروڑ کے رہائشیوں کے لیے بڑی خوشخبری، ٹوٹ پھوٹ کا شکار لیا کروڑ روڈ کی مرمت کے لیے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ ظاہر سرفراز کی رپورٹ دیکھیے۔ لیا سے کروڑ کو جانے والی سڑک عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے گڑھے پڑنے کے باعث سفر کرنے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ MPA شہاب الدین کی کوششوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے سڑک کی مرمت کے لیے 11 کروڑ کے فنڈز منظور کر دیے۔ MPA شہاب الدین نے بتایا کہ ابتدائی طور پر 6 کروڑ کی لاگت سے محرم کے بعد کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ محکمہ C&W کی ونگ جو ہے M&R میں انہوں نے 11 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے، جو کوارٹر وائز فائنل ہوں گی۔ مثال کے طور پر مین چوک جو ہیں راجن شاہ موڑ ہو گیا، کلو چوک، کاظمی چوک، حافظ آباد، اس پہ تقریباً کوئی 6 کروڑ روپے کی لاگت سے جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں گڑھوں کو پر کر کے وہاں میٹل کیا جائے گا، اور باقی پوری سڑک کا تقریباً پیچ ورک مکمل انشاءاللہ محرم کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا۔ ممبر صوبائی اسمبلی شہاب الدین خان کا کہنا تھا کہ سڑک کو اثر نو بنانے کے لیے 97 کروڑ کے فنڈز درکار تھے، مگر پنجاب حکومت کے پاس پیسے نہ ہونے کے باعث ابتدائی طور پر سڑک کو مرمت کیا جا رہا ہے۔ یہ روڈ نیا نہیں بنے گا کیونکہ اس کی لاگت بنتی ہے تقریباً کوئی 97 کروڑ روپے، 1 ارب کروڑ روپے کی لاگت سے یہ کارپیٹڈ بننا تھا، کیونکہ حکومت پنجاب کے پاس اتنا فنڈز موجود نہیں ہے۔ یہ CM صاحب کی مہربانی سے 11 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ لیا روڈ کے پیچ ورک کے دوران ابتدائی طور پر راجن شاہ سمیت دیگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار حصوں کی مرمت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سڑک بننے سے جہاں شہریوں کی مشکلات کم ہوں گی، وہیں عوامی نمائندوں کی عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا آغاز بھی ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ظاہر سرفراز روہی، لیا۔ ابھی بریکنگ شامل کریں گے بہاول نگر سے۔ آپ کو بتائیں DC شعیب جدون کی سربراہی میں انسداد ڈینگی جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ DC نے تمام محکموں کی اینڈرائڈ سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے۔ ہاٹ سپاٹس کی 100% کوریج، مچھروں کی بریڈنگ سائٹس کے خاتمے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ پانی جمع نہ ہونے دیا جائے، گھروں، شہروں، قصبات، گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ ڈپٹی کمشنر شعیب خان جدون کا ایسا کہنا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں بہاول نگر میں DC شعیب جدون کی زیر صدارت انسداد ڈینگی جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی ہے۔ گرام فروشوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی محمد عثمان چودھری کہتے ہیں جو لوگ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل نہیں کر رہے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے عطر لاشاری سے۔ عطر بتائے گا کتنے جرمانے کیے گئے ہیں؟ بالکل ایسے کہ بہاولپور میں بات کریں سبزی اور پھلوں کے حوالے سے تو ان کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ جو مارکیٹ کمیٹی کی لسٹ ہے ایک تو وہ تاخیر سے پہنچتی ہے، اور جب پہنچے بھی سی تو بہت سارے دکاندار اس کو اویزہ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے جو اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی ہیں عثمان چودھری، ان کا کیا کہنا ہے، انہی سے بات کریں گے۔ سر فرمائیے گا کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ اگر ریٹ لسٹ ہی فالو ہو جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں؟ اس میں آپ کے توسط سے یہ بات پیغام ہماری عام عوام تک بھی پہنچانا چاہیں گے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی جائیں کہیں پہ خریداری کرنے کے لیے تو آپ گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹس کو ضرور دیکھیں۔ آپ مطالبہ کریں تمام ریڈی والوں سے، آپ تمام پھلوں والوں سے، تمام سبزی فروشوں سے یہ ضرور مطالبہ کریں کہ وہ جو گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹ لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ضرور موجود ہو۔ ہم بھی اس پہ بڑے سخت ایکشن لے رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے اس پہ کم از کم 10,000 روپیہ جرمانہ کیا ہے صرف ریٹ لسٹ کو اویزہ نہ کرنے کے اوپر۔ دوسری چیز جو گراں فروشی کے حوالے سے ہے کہ وہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ گراں فروشی کی جائے۔ اس میں جیسے ہمارے رپورٹ ہوتا ہے، بلکہ میرے آفس میں بھی لوگ آ رہے ہیں، اگر کہیں پہ ریٹ لسٹ سے زیادہ ریٹ لگایا گیا تو ہم اس کے خلاف فوری ایکشن لیتے ہیں۔
फौरी एक्शन लिया जा रहा है। जो लोग जो सरकारी रेट लिस्ट है करने वालों को जुर्माने आयद किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अतर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से आपको बताएंगे माल खाने में मुबैना खजाने का राज ही रहा। 2 रोज बाद भी माल खाने को डीसील न किया जा सका। इंतजामिया और सेशन जज की जानिब से लगाए गए ताले बदस्तूर लगे हुए हैं। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की कचहरी में माल खाने में मुबैना खजाने का राज आज भी ये राज ही रहा है। 2 रोज गुजर चुके हैं जिले इंतजामिया की जानिब से और सेशन जज की जानिब से। आज जो यहाँ पर सील किया गया था, ताले लगाए गए थे, आज ये ताले खुलने थे, लेकिन आज जो है दोबारा से इसको कैंसिल कर दिया गया है। आज भी जो है इस दरवाजे को नहीं खोला गया। मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये आप देख सकते हैं कि ये वो माल खाना है जो तकरीबन कहा जा रहा है कि 80 साल पुराना है। और रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोविड-19 जनूबी पंजाब से रुखसत होने लगा है। निश्तर अस्पताल में कोविड-19 के सिर्फ 13 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई का कहना है जनूबी पंजाब बहुत जल्द कोविड-19 फ्री हो जाएगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल बताएगा सूबाई वज़ीर तवानाई का मजीद क्या कहना है। जी बिल्कुल, सर्किट हाउस में आज इस हवाले से कोरोना मैनेजमेंट के हवाले से अहम मीटिंग हुई है, जिसमें वाइस चांसलर लिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसके अलावा दीगर अस्पतालों के एमएस ने शिरकत की है। सरबराही मीटिंग की वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने किया। हमारे साथ वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक मौजूद है, हम उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा। अल्लाह ताला का खास करम हुआ है पाकिस्तान पर और ख़ास तौर पर हमारे इस खित्ते पर कि जिस तेज़ी से कोरोना के मरीज़ों की तादाद कम होती जा रही है, वो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह डिक्लेयर होगा, बल्कि कोरोना फ्री हमारा सूबा भी होगा, कोरोना फ्री हमारा पाकिस्तान भी होगा। इसमें आज जो मीटिंग थी, एक तो हमने डाटा कलेक्ट करना था कि आज तक हमारे पास अभी क्या प्रोग्रेस है और कितने पेशेंट्स हैं। दूसरा हमारा जो मेन मकसद था कि हमने तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन हमारे फाइटर हैं, उनको अप्रिशिएट करना था कि जिस अंदाज से उन्होंने कोरोना के मरीज़ों का इलाज किया और पब्लिक का ख्याल किया, उनको हमने अप्रिशिएट करना था। और साथ ही साथ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है मुल्तान की ख़ास तौर पर, जिसमें हमारे मैं कहूँगा कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, हमारे एडीसी साहबान हैं, हमारे एसी साहबान हैं, इन्होंने जिस खूबसूरती से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, वो मैं समझता हूँ काबिल तकलीद भी, और पूरे पाकिस्तान में शायद इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। बिल्कुल, इस हवाले से डॉक्टर कोरोना केसेस में कमी वाक़ हुई है। बिलाल नियाज़ी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इम्बिया खान के शहरियों को हादसा से बचाने के लिए अहम इकदाम। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने साइन बोर्ड्स उतारने के अहकामात दे दिए। उनका कहना है कि पहले मरहले में नाकिस और कमजोर साइन बोर्ड्स को उतारा जाएगा। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो शायद लगभग 2017 या 18 की है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे जितने भी बिल बोर्ड्स और एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो रिमूव कर दी जाएं। तो ये नोटिस में हमारे पहले से ही था और आज हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले से ये एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहे थे इन एंटिसिपेशन ऑफ बरसात और जो तूफान आ सकता है। अब अलबत्ता चूंकि कराची में एक इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी हैं विच आर नॉट एप्लीकेबल रिपोर्टेडली टू अस, क्योंकि अभी हमें कोई उसमें इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट नहीं हुई, लेकिन हम अपना रूटीन में जैसे काम कर रहे थे हम करते जाएंगे। और जो बोर्ड्स आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भावलपुर में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आलू समेत दीगर कई सब्जियां 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे अतर लाशारी। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में सब्जी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला रुक न सका। सबसे सस्ती सब्जी आलू भी 100 रुपए किलो से महंगा हो गया। गरीब शहरियों का कहना था कि ज्यादातर सब्जियों की कीमतें 100 रुपए से बढ़ गई हैं। आलू तो उवें बहु अरूज खड़े थे, जन की फसल लाण पई है हुण जाने का 400-500 रुपया धड़ी दे खड़ गए। गरीब शोदा क्या करे, पिटोका पिटकदा पे भी क्या करे। भिंडी दे गिनो 600 रुपया धड़ी, 700 रुपया धड़ी, 500 रुपया धड़ी। केरी सब्जी सस्ती है, सारे सब्जियां महंगियां में अपन। शहरियों का कहना था कि 400 रुपए दिहाड़ी लेने वाले कहां से 2 वक्त की रोटी पूरी करें। गरीब आदमी जो ना अभी 100 रुपए किलो है, जिसके घर के मतलब 8 बंदे या 10 बंदे हैं, 400 या 500 कमाता है, वो क्या लेगा और क्या खाएगा। ये मतलब निजाम बहुत खराब है। बहावलपुर में ज्यादातर दुकानों पर मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट ही नहीं होती, जिसके बाद दुकानदार अपनी मनमर्जी के नर्ख वसूल करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। उधर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुहर्रम हराम के हवाले से एक्शन प्लान पर अमल जारी है। इमाम बारगाहों के अंदर और बाहर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। सुबह के अलावा शाम के औकात में सफाई के लिए इमरजेंसी कैंप्स ने काम शुरू कर दिया है।
मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से आस्ताना अबुल फजल अब्बास MA जिना रोड में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। आस्ताना जिलान रोड, आस्ताना आलिया, दरबतूल और आस्ताना न्यू मुल्तान में भी खुसूसी सफाई की गई। आस्ताना चाह बोहड़वाला, जलीलाबाद और इमाम बारगाह, जन्नतुल बकी, सूरज मियानी में भी सफाई के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में जुल्म के खिलाफ जो कुर्बानी दी, उसे आज भी उम्मत मुस्लिमा अकीदत व एहतराम से मनाते हैं। शोहदाए करबला से मंसूब तबरकात की खरीदारी के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। हरमुल हराम के आगाज से ही मुल्तान के इमाम बारगाहों के बाहर छोटे बड़े मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां तबरुकात की खरीदारी उरूज पर है। ये तबरुकात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफका से मंसूब होने के बायस मन्नतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अलम, पंजा, नादे अली, अंगूठियों, कड़ों, जंजीरों समेत दीगर तबरुकात को मुहर्रमुल हराम के दौरान सादत से कम तसव्वुर नहीं किया जाता। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम के दिनों में घरों के अलम और पंजे वगैरह चेंज करते हैं अकीदत के मुताबिक, और मनतों दरबार शाह शम्स इमाम बारगाह पर लोग अपनी मनते उतारते हैं आके यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। पीतल और चांदी से बनी इन अशिया पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम कुंदा होने की वजह से इनकी अहमियत में मजीद इजाफा हो जाता है। रेशम के तारों और मोतियों से तैयार करदा चादरें अलम और ताबूत के लिए इस्तेमाल होती हैं। खरीदने आए हैं माशाल्लाह, लगानी है जाके उधर मियां चन्नू में। अज़ादारान अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इन तबरुकात की खरीदारी करते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक। अभी आपको बताएं कि रहीम या खान के मोहल्ला मलिक फेरोज के 90 साला उस्ताद रसूल बख्श नोहा खानी में उस्तादों के भी उस्ताद हैं। उस्ताद रसूल बख्श नोहा खानी में 200 से ज्यादा शागिर्द रखते हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। दिलावे हसन दा बचड़ा पानी मिलया मूल न कतरा, मैं दिलावे हसन दा बचड़ा पानी मिलया मूल न कतरा, मेहंदी तेरी खुशिक पया। मरकजी लंगर हुसैनी इमाम बारगाह में नहायत प्यार से अपने शागिर्दों के दरमियान बैठकर नोहा खानी करते ये बुजुर्ग उस्ताद रसूल बख्श रहीम यार खान के मोहल्ला मलिक फरोज के रिहायशी हैं, जिनका कहना है कि 6 साल की उम्र से अपने वालिद के साथ नोहा खानी शुरू की थी। आज 90 साल की उम्र में भी नोहा खानी जारी रखे हुए हैं। वो शाम या के कूफा, वो शाम या के कूफा, हर लम्हा करबला, ज़ैनब तुम्हारा पर्दा, इस्लाम की बका। उस्ताद रसूल बख्श की दर्द भरी आवाज से नोहा खानी सुनते ही पत्थर दिल पिघल जाते हैं और अज़ादारों के आंसू हैं कि रुक नहीं पाते। अज़ादारी हजरत इमाम हुसैन और ये अज़ादारी होती रहेगी, क्योंकि ये मातम हुसैन है, ये न कभी बंद होगा न हुआ है। उस्ताद रसूल बख्श के 90 साल की उम्र में 200 से ज्यादा शागिर्द हैं, जबकि अब भी शागिर्द इस उम्र में इनसे सीखने के लिए पहुंच जाते हैं। मैंने इनको ऐसा पाया कि जैसे हमारे ऐसे बुजुर्ग उस्ताद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनकी आवाज़ में ऐसी ही कर्ब है, ऐसी ही ख्वासानी वो करते हैं, जिससे दिल में ना किया ऐसे खून के आंसू रोता है। उस्ताद रसूल बख्श कहते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक नोहा खानी के शागिर्द बनाते रहेंगे और यूं ही मोहब्बत, अमन और भाईचारे को फैलाने का काम करते रहेंगे। महकमा औकाफ दरगाहों की देखभाल के लिए हिफाजती इक़दामात बारे सरगर्म। दरगाह हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया हज़रत शाहरुख आलम पर मामूर अमले के लिए हिदायत जारी। अमले को ड्यूटी के दौरान मुकर्ररा जगह पर मौजूद रहने के अहकाम दिए गए। दरबार शरीफ आए ज़ायरीन से अमला हुस्ने सलूक से पेश आए। मरासले के मुताबिक अमले के अलावा कोई प्राइवेट शख्स अमले की जगह खड़ा नहीं हो सकता। मरासले में कहा गया है कि अमले के अलावा कोई प्राइवेट शख्स अमले की जगह पर खड़ा नहीं हो सकता। अमले की ड्यूटी के दौरान मुकर्ररा जगह पर मौजूद रहने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। दरबार शरीफ आए ज़ायरीन से अमला हुस्ने सलूक से पेश आएगा। मरासले में ऐसा कहा गया है।
मुल्तान में रोही की निशानदही पर मदनी पार्क में बेंच तो रख दिए गए, लेकिन टूटे हुए बेंच पर शहरी भी बैठने से कासिर हैं। टूटे हुए बेंच का पार्क में रखना पीएचए की बेहिसी का वाज़ेह सबूत है। तफसीलात देखिए अली रियाज की रिपोर्ट। रोही टीवी पर खबर नशर होने के बाद पीएचए मुल्तान की जानिब से पार्क में बेंच तो रख दिए गए, मगर बेंच टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से पार्क में आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ये चैनल पे खबर 20 तारीख को रोही चैनल ने लाइव खबर जब दी और उनसे विजन लिया, तो उसके रिएक्शन में जो कल रात ये तमाम बेंच तोड़ के यहाँ पर रख दिए गए। अहले इलाका का कहना था कि टूटे हुए बेंच का पार्क में रखना पीएचए की बेहिसी का वाज़ेह सबूत है। अपनी मदद आप के तहत बेंच खरीदे थे, जिन्हें अब तोड़कर पार्क में वापस रख दिया गया है। बेंच सारे तोड़ के बर्बाद करके रख गए। हम सारे शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज बीमार लोग हैं, हम बैठना चाहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादती ये है। खुदारा अगर कोई भी महकमा इस न्यूज को देख रहा है तो खुदारा इन बेंचों को दोबारा ठीक करवा के रखा जाए। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि पार्क में नए बेंच दोबारा रखे जाएं। टूटे फूटे बेंचों की वजह से न सिर्फ पार्क की खूबसूरती मांद पड़ रही है, बल्कि यहाँ पर सुबह की सैर के लिए आने वाले बुजुर्ग भी बैठने की जगह से महरूम हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन ने फ्याज पार्क में कैलीग्राफी करने के अहकाम जारी कर दिए। जिला काउंसिल इस्लामी नामों के लिए कैलीग्राफी करेगा। डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन ने फ्याज पार्क को मजीद खूबसूरत बनाने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ने फ्याज पार्क में कैलीग्राफी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन ने कहा कि जिला काउंसिल पार्क में इस्लामी नामों की कैलीग्राफी करेगा। पार्क में कुरानी आयात और अल्लाह पाक के नामों की कैलीग्राफी की जाएगी। मुल्तान में सलाहुद्दीन डोगर पार्क की बहाली के काम का आगाज हो गया। पार्क 70 लाख रुपए की मालियत से डेकोरेट किया जाएगा। मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर ने डीजी पीएचए के हमरा संगे बुनियाद रख दिया है। तफसीलात जुनैद अनवर की ज़बानी। मुल्तान में सलाहुद्दीन डोगर पार्क की बहाली के काम का आगाज कर दिया गया। पीएचए के ताउन से सलाहुद्दीन डोगर पार्क 70 लाख रुपए की मालियत से डेकोरेट किया जाएगा। पार्क में पौधे लगाए जाएंगे और ट्रैक्स को बहाल किया जाएगा। पार्क में नए काम का संगे बुनियाद मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर, डीजी पीएचए आबिद महमूद ने रखा। मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर का कहना था कि सलाहुद्दीन डोगर पार्क में शजरकारी मुहिम जारी है। पौधे लगाए जाएंगे तो माहौल बेहतर होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत इसकी रेनोवेशन का आज फिर हम इफ्तिताह कर रहे हैं और इस सलाहुद्दीन डोगर पार्क को हमने मुल्तान के मॉडल पार्क्स में शामिल किया है और इसमें जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड जो एक मॉडल पार्क में होनी चाहिए वो इसमें शामिल की है। डीजी पीएचए आबिद महमूद का कहना था कि सलाहुद्दीन डोगर पार्क में 70 लाख रुपए से ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। सलाहुद्दीन डोगर पार्क को मॉडल पार्क बनाएंगे। हमने इसको एज मॉडल पार्क डिक्लेयर कर दिया। तो मॉडल पार्क मींस कि इसमें हम हर वो फैसिलिटी देंगे जो एक आइडियल होनी चाहिए और इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी और इसका जो लैंडस्केप है उस पे हम खास तवज्जो देंगे और स्पेशली ये इस पार्क को हम चाहेंगे कि जी ये जो मुल्तान का है सबसे बेस्ट पार्क इंशाल्लाह होगा। पार्क की ताज़ीन और आराइश के इफ्तिताह के बाद दुआ भी करवाई गई और पार्क का विजिट भी किया गया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनैद अनवर। मुल्तान पीएचए का चौकों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तज़ीन आराइश का फैसला। नॉर्दर्न बाईपास, मॉडल टाउन चौक समेत दीगर अहम चौकों को खूबसूरत बनाया जाएगा। डीजी पीएचए आबिद महमूद और चेयरमैन की वफ़द से मुलाकात हुई। मुलाकात में शाहराहों की तज़ीन आराइश के मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए कोशा है। डॉक्टर आबिद महमूद का ऐसा कहना है। जी हां, आपको बता रहे हैं पीएचए का चौकों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तज़ीन आराइश का फैसला। नॉर्दर्न बाईपास, मॉडल टाउन चौक समेत दीगर अहम चौकों को खूबसूरत बनाया जाएगा। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल एक रोजा दौरे पर मुल्तान पहुंचे। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर और दारुल अमान समेत दीगर अदारों का विजिट किया। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल एक रोजा दौरे पर मुल्तान आए। सेक्रेटरी ने इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर का विजिट किया। डिविजनल डायरेक्टर रायख्तर अजहर, मैनेजर सनतजार मुजम्मिल यार, मैनेजर वॉक सेंटर मुनीजा मंजूर समेत दीगर स्टाफ ने इदारे की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। स्टाफ की कमी के मसले पर भी बात की गई। इदारे की कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है। अभी जब मैं प्रोग्रेस रिव्यू कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एवरेज इनके साल में 1200 केसेज ये रजिस्टर करते हैं। फिर यहाँ मेडिकल सर्विसेज भी हैं, उनके लिए पुलिस स्टेशन, एसपी साहब भी हैं, साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी हैं, मीडिएशंस भी हैं।
بہت اچھی پرفارمنس جاری ہے ادارے تھی. سیکٹری حسن اقبال نے واک سینٹر میں عملے کی کمی کو پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی. انہوں نے دارالعلوم کی زیر تعمیر نئی بلڈنگ کا جائزہ لیا اور ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا وزٹ کیا. ان کے کچھ مسائل ہیں جیسے سٹاف کی کمی ہے, تو میں نے ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سارا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے جو بھی ایشوز ہیں وہ مجھے لکھ کے بھیجیں, تو ان کا انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پرائرٹی بیسس پہ ان کو ہم طے کریں گے. سیکٹری نے دارالعلوم کی نئی بلڈنگ میں خواتین کے لیے فراہم کی گئی سہولیات کا بھی جائزہ لیا. کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق, ملک. ہارٹیکلچر ریسرچ اسٹیشن بہاولپور نے کھجور کو بہترین انداز میں خشک کرنے کے لیے انتہائی کم قیمت کا جدید ترین ڈیسکیریٹر تیار کر لیا ہے. اب بغیر کسی خرچ کے کھجور خشک کر کے باغبان اپنی کھجور کا 4 سے 5 گنا زیادہ منافع کما سکیں گے. کھجور کے پھل کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اچھے داموں فروخت کرنے کے لیے اس کا بین الاقوامی معیاری پر خشک ہونا لازمی ہے. آرکیٹیکچر ریسرچ اسٹیشن نے کھجور کو خشک کرنے کے لیے پہلا مقامی ڈسیکٹر تیار کر لیا. 5 لاکھ میں تیار ہونے والے ڈسیکٹر میں باغبان بغیر کسی اضافی خرچ کے ہزاروں ٹن کھجور خشک کر سکتے ہیں. یہ جو یونٹ بنایا گیا ہے آلموسٹ یہ 5 لیکس میں بنا ہے, 0.5 ملین میں بنا ہے. اس کے اندر جو کیپیسٹی جو ہے نا یہ 4 to 5 ڈیز میں یہ تیار ہو جاتی ہے. بالکل اس کی کھجور تمر تیار ہو جاتی ہے. ٹمپریچر اس کا صرف اور صرف سورج کی روشنی ہی بلڈ اپ کرتی ہے اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس میں مشینری نہیں ہے. ڈسیکٹر کو پاکستان کے معروف ہارٹیکلچرسٹ ڈاکٹر اخلاق احمد نے خود تیار کرایا ہے. ڈاکٹر اخلاق احمد کا کہنا تھا کہ کھجوروں کو اچھے طریقے سے خشک کیا جائے تو اس کی قیمت میں 4 سے 5 گنا تک اضافہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی کھجور تیار کر لی جائے اور فریش اگر بیچی جائے تو تقریباً 4 گنا زیادہ پروفٹ ملتا ہے. اور اس ڈیسیکیٹر کی جو آلموسٹ کیپیسٹی ہے وہ 50 بائی 15 فیٹ ہے, 50 ضرب 15 فٹ کا ہے یہ. اور اس میں 2 ٹن کھجور 4 سے لے کے 5 دن کے اندر تیار ہو. اور اس کے ساتھ ہی نیوز 2D سب تک کے لیے اتنا.